We look forward to an enlightening evening of conversation and narration with Javed Saab and Professor Rai speaking on the intimate relationship between Hindi and Urdu. Before I invite our president, Shri Shyam Saran, on stage to take the mic, I would like to briefly introduce our two guests for the evening. Of course, any introduction of Javed Saab would actually be saying too little, but I would like to state that he is the son of well-known Urdu poet and film lyricist Jan Nisar Akhtar, who was professor of English literature and a writer. Javed Saab belongs to a family lineage that can be traced back to 7 generations of writers. His body of work can be divided into 4 distinct categories: scriptwriter, lyricist, poet, and activist. He is the recipient of 5 national awards presented by the Government of India for Best Lyricist. He is also the recipient of 15 Filmfare Awards and has been conferred the Padma Bhushan by the Government of India in 2007. Apart from his work as poet, writer, and lyricist, Javed Saab is also a highly respected social activist working for the rights of the underprivileged and for gender justice. Born and raised in Allahabad, Professor Alok Rai grew up in an affluent Hindi-Urdu background, which explains his strong linguistic concerns. He was born into a family that gave him, well before the age of consent, a certain engagement with matters of language and culture, and also with literature. He has taught at the University of Allahabad, at the Indian Institute of Technology in Delhi, at the University of Pennsylvania, and he retired from the Department of English, University of Delhi in 2011. He has been involved with the business of writing and with language in society. His interests include modern English literature and cultural processes in modern North India, with particular reference to issues of language and literature. Professor Rai is also the grandson of the legendary Hindi writer Premchand. I would now like to invite Shri Shyam Saran, President of the India International Center, to welcome our guests on stage. Mr. Saran, sir, if you would please come to the podium and take the mic. Thank you, and may I remind the audience to please keep your cell phones on the silent mode or switch them off. Thank you very much. Good evening, everyone. As one can see, this is perhaps one of the most popular programs that we have had in the recent past. Of course, here at IIC, we are very privileged that I think this is probably the only institution which has had the privilege of hosting Javed ji twice in just a few months, I think. So ये जो आपने इनायत की है वो इसको कायम रखें तो बहुत ही मेहरबानी होगी. Let me just mention to you that the subject that both Mr. Javed Akhtar and Alok Rai ji will be speaking about today. This is a very important and relevant subject, and I think the large number of people who have gathered here today, I think testifies to the fact that this is a subject which is of great interest and concern to people all over India. All of us speak a language which we know as Hindustani, which draws both from Hindi as well as from Urdu. These are languages which actually have emerged over several hundred years from multiple sources, multiple inspirations.
And one of the most important aspects that perhaps we forget is that how enriching this language has been for us. You know, it is so much part and parcel of Indian culture. And if we try to separate them, I think we will be more impoverished as a result. So this is something which we need to keep alive. We need to let it flourish amongst us because much of our sensibilities, emotional sensibilities, sentimentality is so much, you know, so tightly, in fact, associated with how these languages have developed amongst us. I was just looking at the possibility, and I spoke to Alok Rai ji, that you know, we also need to perhaps look at, you know, the whole period of our national movement when we had several of very, very famous Indian Hindi poets like Maithili Sharan Gupt or Dinkarji, whose poetry is so evocative. We need to also, perhaps many of us have forgotten many of those you know, poems. To revive that and to revive that oral tradition in our languages. This is something that India International Center wants to promote. So with those words, let me not stand between Javed Bhai and Alok Rai ji. We will have a very, very, I think, I'm sure, a more stimulating and a very, very historic event in front of us. Thank you very much for your attention. चलिए साहब, मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधता हूँ। प्लेटो ने बहुत सारी अकल की बातें की हैं, उनमें से एक अकल की बात यह है कि जब किसी मौजू पे बात करो तो अल्फाज के, शब्दों के माने तय कर लो। तो ऐसा ना हो कि शब्द का एक मतलब वो समझ रहा हो और एक आप समझ रहे हो और बातचीत चल रही हो, जो कि आमतौर से होता है, ख़ास तौर से इस शहर में। तो ज़बान, भाषा, ये क्या है? यह है क्या चीज़ जिसे हम कहते हैं ज़बान? ये अपनी स्क्रिप्ट है। अगर ये स्क्रिप्ट है तो पंजाबी तो 3 स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी में, गुरमुखी में और उर्दू रस्म नस्तालिक में, मगर रहती पंजाबी है। फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं KUCH, HOT, HAI, तो कुछ होता है इंग्लिश है, नहीं है। तो और अगर स्क्रिप्ट ही ज़बान है तो फिर अंग्रेज़ी तो लैटिन है और फ्रेंच भी लैटिन है और जर्मन भी लैटिन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो मालूम हुआ कि स्क्रिप्ट ज़बान नहीं है, तो फिर वोकैबुलरी होगी ज़बान। मैं अगर ये कहूँ कि हाउसफुल है तो मैं 4 शब्द बोल रहा हूँ, ये हाउसफुल है, तो क्या मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ? जबकि 4 शब्दों में जो इम्पोर्टेंट थे लफ्ज़ वो अंग्रेज़ी के थे, हाउस और फुल। बाकी तो एक तरफ है लगा है, एक तरफ ये लगा है। तो ये इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा मैं? या मैं किसी और ज़बान में इंग्लिश के 2 वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर ऐसा है तो फिर ये और है ने तय किया है कि कौन सी ज़बान है ये क्या किस्सा है? बात ये है कि ज़बान न अपनी स्क्रिप्ट है, न अपनी वोकैबुलरी है। ज़बान अपनी ग्रामर है, सिंटैक्स है, और आप एक पर्टिकुलर सिंटैक्स में दुनिया का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ज़बान वो नहीं हो जाएगी, ज़बान वही रहेगी। हमने एक लफ्ज़ ले लिया, लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। हम कितने लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा, फिर बाद में बात करेंगे। मैं अभी तो आलोक जी से पूछना चाहूँगा कि इस बात को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो ख्याल आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक साइन देखा सड़क पे ही, रेड लाइट जंप ना करें। और ज़ाहिर ये मतलब इसमें रेड लाइट जंप ना करें, ये था।
तो जाहिर है जो बात आप कह रहे हैं वो जी। बिल्कुल सही है कि जाहिर है कि जिस ज़मीन पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ज़मीन तय करती है कि ज़बान क्या है ना। वाह। और जाहिर है कि जब हम हिंदी उर्दू की बात करते हैं तो देखिए, हिंदी उर्दू को अलग अलग खींचने खांचने की कोशिश लाख हो जाए, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ज़मीन दोनों की एक ही है। और आप लाख लफ्ज़ मिला लीजिए, उससे फारसी अरबी से ले लीजिए, संस्कृत से ले लीजिए, लेकिन वो ग्रामेटिकल बेस जो है वो अपनी जगह जमा हुआ है। और वो, माफ़ कीजिएगा, वो न तो फारसी से आया है और न संस्कृत से आया है। यानी कि ये जो ज़बान हमारी है, इसका ग्रामेटिकल फाउंडेशन क्या है ये कहना आसान नहीं है कि क्या है, लेकिन है, क्योंकि हम और आप सब इसको पहचानते हैं और रेड लाइट जंप करें तब भी पहचान जाते हैं कि फाउंडेशन यही है। सही है, सही है। मेरा भी सलाम कहिएगा। तो अब जहाँ तक का ये बात है सिंटेक्स की, उसकी, ये तो हिंदी उर्दू की एक है। अब हम एक काम करते हैं, मुझे तो बड़ी दिलचस्प बात लगती है अक्सर कि जब तक मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ और आपकी समझ में आ रहा है तो आप समझते मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जब ज़रा समझने में मुश्किल पड़ती है तब आप कहते हैं ये उर्दू है। ये एक अजीब किस्सा है। बहरहाल, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इंसान जिसे न लिखना आता न पढ़ना आता है, और इसे ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो जब वो ये कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो घर जा रहा हूँ। खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं लग रही। पानी पी लो? हाँ, थोड़ी प्यास तो है। ये कौन सी ज़बान बोल रहा है? ये लिखता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। ये हिंदी है कि उर्दू है? ये क्या है? हकीकत ये है कि ये दोनों है। अब ये ज़रा सा पढ़ लिख गया तो इधर से लिखने लगा तो उर्दू हो जाएगी, उधर से लिखने लगा यही वर्ड तो हिंदी हो जाएंगे। तो मतलब आप स्क्रिप्ट से तय कर रहे हैं कि ये ज़बान क्या है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ कई बार लोगों को सुना चुका हूँ और फिर भी सुनाना चाहूँगा, जो मैंने रट के रखा है इस मौके के लिए। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा मर्द और एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक ली, रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। किसी को कोई मुश्किल पड़ी? कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी लाइन जो ये क्या है भाई, ऐसा लगा? अब चलिए इसको ज़रा सा एनालाइज करते हैं। एक मकान के मकान अरबिक, एक कमरे में कमरा इटालियन, एक गोरा चिट्टा चिट्टा पंजाबी, मर्द पर्शियन, एक नन्हा मुन्ना बच्चा नन्हो गुजराती, बच्चा पर्शियन, बाल्टी पुर्तगीज, बावर्ची टर्किश, उड़द तमिल, तोस इंग्लिश, चिक टर्किश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश, रिक्शा, fasten your seat belts, Japanese. Japanese. And bebas is the mispronunciation or colloquial pronunciation of vivash, which is Sanskrit. आपने इतनी ज़बानें एक साथ बोली। अब आपको अगर प्योर करनी है अपनी ज़बान तो ये सारे वर्ड बाहर निकलने पड़ेंगे आपको। देख लीजिए, फिर इशारों से ही बात होगी। नहीं, जादू, आपने जो बात कही बेहद बेहद सिग्निफिकेंट है। वो ये कि ये जो लेक्सिकल मिक्स हमको आम ज़बान में मिलता रोज़, अगर हम कान ट्रेंड हैं तो हम सुन सकते हैं। ये कहानी कह रहा है, और ये कहानी कह रहा है, इस सिविलाइजेशन की कहानी कह रहा है कि यहाँ पे इतने तरह के लोग
इतने तरह, माफ़ कीजिएगा मेरी आदत नहीं है, इतने तरह के लोग आए हैं यहाँ पे, सदियों से आ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश से ही एक चीज़ बनती रही है और बन रही, वो आज भी बन रही है ना। और ये मेरी नज़र में ये हमारे सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जैसा कि और कम जगहों में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई कारणों से कई तरह के लोग दुनिया भर से आते रहे और हज़ारों साल से आ रहे हैं और बस रहे हैं। इसीलिए यानी जो आपने ग्रामर की बात की कि ग्रामेटिकल फाउंडेशन क्या है, ये मसलन मैं कुछ जानता हूँ, जैसे जो हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग नहीं हैं, वो जब सीखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बेहद मुश्किल पड़ती है कि आखिर रूल है क्या, क्योंकि जो ग्रामेटिकल फाउंडेशन है ये बेहद स्लिपरी है। इसलिए हम और आप जो नेटिव स्पीकर्स हैं, हम जिस आसानी से बोल लेते हैं, वो आसानी किसी दूसरे को नसीब नहीं है ना। और ये इसको मैं विरासत समझता हूँ, ये मुझे मेरी सिविलाइजेशन ने दी है ना, और इसको मैं आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली ग्रामर खुदा की तरह होती है, बस वो है तो है, उसका सबूत और क्यों है और कैसे है, इस बहस में आप पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस वो है, ऐसा क्यों सही है, इसलिए कि हम कह रहे हैं ऐसा है। तो दरअसल जब ग्रामर एक हो तो ज़बानें दो कैसे होती है आर्टिफिशियली? वो है क्या कि दुनिया में दो ज़बानें होती हैं, एक अवाम की और एक हुकूमत की, हर जगह। जो सरकारी ज़बानें होती हैं हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से और हर जगह, वो कुछ और हैं, उनका मिजाज कुछ और है, उसकी वोकेबलरी कुछ और है, उसका तरीका कुछ और है। और जो इंसान सड़क पे बोलता है, घर के आंगनों में बोलता है, वो ज़बान कोई और है। तो फैक्ट ये है कि आप अगर सड़क पे आइएगा या घर आंगन में जाइएगा तो आपको मालूम होगा कि इन ज़बानों में तो कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। ये फ़र्क जो है वो जब या तो आपको कोई वो हो गया हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आपके हाथ में हो जहाँ आपको इसी ज़बान से रोटी मिलेगी, तो उसको आप प्योरीफाई करते रहते हैं। मसलन उर्दू मैंने ऐसी भी सुनी है कि सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ़ है, ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। जिसका सिंपल मतलब ये है कि लीड वॉइस पहली लाइन गा रही है, कोरस दूसरी लाइन गा रहा है। तो ये भी सब होता है कि जब आपको अपने वजूद पे यकीन ना हो तो उसे यकीन, जैसे लहजे में और उस पर जिन लोगों में एक कमी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की या सेल्फ एस्टिमेट की, तो वो कुछ ज़्यादा घमंड से, गुरूर से और ज़्यादा ये साबित करने को मिलते हैं कि हम हैं और हम ये मत समझा कि हम ही नहीं। तो ये जो लो सेल्फ इस्टीम से निकलती हैं बातें, उसी तरह से जब आप इस तरह की लो सेल्फ इस्टीम कहीं भी हो तो हम ज़बान को ऐसा बनाने लगते हैं, हमारी ज़बान है भाई, अरे तुम्हारी ज़बान तो है ही है, उसी में तो तुम बोल रहे हो, बाकी लोग तुम्हारी बात इतने जो सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, और वो भी तुमसे बात करें, तुम्हें उनकी समझ में बात आ रही थी कि नहीं आ रही। तो अगर ये सब ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ज़बान का? जो हिंदी उर्दू ये पॉलिटिकली एक अरसे से, मेरे ख्याल से 150-200 साल से, या ये 200 ही साल के अंदर का किस्सा है मोटा मोटी। जी जी, मोटा मोटा 1-2 साल इधर 1-2 साल उधर होगा, कि जब उनके अलग वजूद को सरकारी तौर से तस्लीम किया गया। ये तो एक ही थी। आप जब शुरू में देखते हैं जो पोइट्री है वो आप बोल ही नहीं सकते कि ये किसने लिखी है, ये उर्दू के पोइट ने लिखी है, हिंदी के पोइट ने लिखी है। ये धीरे धीरे ये 200 बरस में एक बहुत इंटेंशनली ब्रिटिशर ने, जहाँ तरह तरह के डिवीज़न वो चाहते थे, तो दे वांटेड, बड़े दूर देखने वाले लोग थे, तो उन्होंने एक कल्चरल डिफरेंस के लिए नॉर्थ इंडिया में इसको इस तरह, मतलब ये कहना कि
उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। अच्छा, तो ये जो 10 करोड़ बंगाली थे ईस्ट पाकिस्तान में, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में, ये मुसलमान नहीं थे। इन्होंने तो कहा मरते मर जाए हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमें अलग मुल्क चाहिए। तो ये 10 करोड़ कौन से थे? इनकी ज़बान थी उर्दू। ये जो मलयालम के राइटर्स हैं, बशीर जैसे जाइंट्स, ये उर्दू में लिखते हैं। ये बाकी जो मिडल ईस्ट में अरब घूम रहे हैं सब उर्दू बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान में सारे, कज़ाकिस्तान के मुसलमान सब उर्दू बोलते। कहाँ उर्दू बोलते? उर्दू सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़बान है। अब वो ठीक है, 70 साल पहले एक हिस्सा अलग हो गया था तो हिंदुस्तानी ना, तो वहाँ की ज़बान है और यहाँ की ज़बान है, और कहाँ की है? कहीं की है ही नहीं। अच्छा साहब, हिंदी जो है हिंदुओं की ज़बान है। ये जाके आप तमिलनाडु में बताइए लोगों को कि भाई तुम्हारी ज़बान ये है, तुम क्या कर रहे हो, ज़रा देखें हम भी। तो ये बेकार बात। ज़बानें रिलीजन की हो ही नहीं सकती, ज़बानें रीजन्स की होती हैं। इस रीजन की ये ज़बान है, पंजाब की पंजाबी है, बंगाल की बंगाली है, सिंध की सिंधी है, महाराष्ट्र की मराठी है। ये कौन सी ज़बान है जो? अच्छा, तो अंग्रेज़ी क्या ईसाइयों की ज़बान है? ये सारे फ्रांस के और इटली के ईसाई अंग्रेज़ी बोलते हैं। किसकी ज़बान है? इलाकों की ज़बान होती है। ये नॉर्थ इंडिया की ज़बान थी। मैं तो दिल्ली में 1000 बार सुन चुका हूँ। 70s में फादर का जिक्र होता था, अब ग्रैंडफादर का होता है। मेरे फादर तो साहब सिर्फ उर्दू अखबार पढ़ते थे, तो कह रहे भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? मेरे अब दादा आ गया है, एक जनरेशन चेंज हो गई। मेरे दादा साहब उर्दू में लिखते थे, पढ़ते थे। उर्दू किताबें उनकी अभी भी हमारे घर पे रखी है, जो हम लोग तो पढ़ नहीं सकते लेकिन रखी है हमने संभाल के। तो ये ज़बान नॉर्थ इंडिया की ज़बान थी। बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। जो पूरी 2 नेशन थ्योरी थी वही झूठी थी, और उसमें बाकी तो आप हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन बना लिए। आप बना सकते हैं कि आपका हीरो महमूद गज़नवी, आप बना सकते हैं आपका हीरो कोई और है। अलग अलग आपने हीरो भी बना लिए, अलग इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री के कर दिए, सब कर देंगे। इस कमबख्त का क्या करेंगे? इसमें ये तो कर नहीं सकते कि आप एक काम कीजिए कि वर्ब आप पाकिस्तान ले जाइए और नाउन हम रख लेंगे। ये तो हो नहीं सकता। और ये उर्दू स्क्रिप्ट की वजह से इसको इन्होंने इसी शहर में 1798 में, एज लेट एज 1798, आफ्टर कुरान ट्रांसलेशन इन सिंधी, आफ्टर 700 years after that, Quran was first translated in Urdu by a gentleman called Shah Abdul Qadir in 1798. जितने उस वक्त के शाही इमाम और काजी थे और जो थे, सब ने कुफ्र का फतवा दे दिया उसे कि इस हीदन लैंग्वेज में, इस गलीज ज़बान में, ये जो शराब की और पता नहीं इश्क विश्क की बातें करती है, इसमें आपने कलाम पाक तर्जुमा कर दिया। ये फतवे हो गए। और यही ज़बान 1798 से लेकर विदिन 70-80 years इसके सर पे टोपी रख दी गई और इसके दाढ़ी चिपका दी गई नकली। ये जो है ये एक फ्रॉड है। उसके बाद हिंदी जहाँ से शुरू हुई, मॉडर्न हिंदी बहुत यंग है। देखिए, ये बेहतर बताएंगे मुझसे, चाहे जो सूर हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, जो भी पुराने शायर हैं, ये दूसरे डायलेक्ट के शायर, खड़ी बोली के शायर नहीं हैं। हमारी तो खड़ी बोली चली ना, और जो आज की मॉडर्न हिंदी है वो भी खड़ी बोली में। हिंदी में खड़ी बोली के पहले शायर आप बेहतर जानते होंगे, जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है भारतेंदु हैं, हरीशचंद्र। भारतेंदु वैसे उर्दू में लिखते थे, रसा के नाम से लिखते थे। भारतेंदु रसा के नाम से लिखते थे। उनका हिंदी में भी लिखते थे और उर्दू में भी लिखते थे। वरना खड़ी बोली काव्य जी इन मॉडर्न टाइम्स हैज़ बीन ए स्ट्रगल टू फाइंड एन एडिक्वेट पोएटिकल लैंग्वेज, है ना। क्योंकि पोएट्री की ज़बान तो ब्रजभाषा थी, भोजपुरी थी, अवधी थी, है ना। इसलिए ये, लेकिन मैं एक बात थोड़ी पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है जो आप कह रहे हैं कि ये जो उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और बाय इम्प्लिकेशन हिंदी जो है वो हिंदुओं की है। इट इज़ ऑब्वियसली आउटराइट ए कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग। ये गलती है,
सीधी सी बात. And Galti is putting a charitable interpretation on it. It's probably worse than that. But it is at least a mistake. It is, however, a profoundly consequential mistake. And it is a mistake जो कि आज भी हमको जगह जगह सुनने में मिलता है. आज भी ये होता है कि उर्दू कहीं और की ज़बान है. ये तो, और ये बात जाहिर है कि ये उर्दू वाले भी कहते हैं कि उर्दू तो अरब से आई है, पर्शिया से आई है. तो फिर पूरी ले आए होंगे, लेकिन वहाँ तो नहीं बची. है ना. लेकिन जाहिर है जो आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदी उर्दू का कोई मसला है ही नहीं. यानी कि सवाल जो उठता है वो ये कि मसला है तो क्यों है, यानी कि मेटा मसला कहिए तो है. यानी कि व्हाई इज देयर एन इशू एट ऑल. क्योंकि जो ज़बानों की डुअलिटी की बात होती है, हिंदी या उर्दू इत्यादि, ये या की कोई बात ही नहीं है. ज़बान एक ही है ना. उसके हायर लिटरेरी रजिस्टर्स दो हैं और ज़बानों में एक होते हैं. यहाँ पे दो हायर रजिस्टर्स हैं. एक हायर रजिस्टर उर्दू है, एक हायर रजिस्टर हिंदी है. ठीक है. और एक उसके बीच में एक ह्यूज इमेंस लिंग्विस्टिक टेरिटरी है जिसमें कि हम और आप जीते हैं, है ना. और ये जो बनी है ज़मीन, ये ज़ाहिर है एक दिन में नहीं बनी है. ये हज़ारों साल में बनी है और लाखों करोड़ों लोगों के एक्सप्रेसिव नीड्स, ज़रूरतों से बनी है. क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मेरी बात समझें. मैं कहीं और से आया हूँ, मैं गैर हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करते हैं. हम दोनों की कोशिश से कोई एक चीज़ तीसरी बनती है. ये वो ज़बान है, ये वो चीज़ है. और इसलिए मैं इसके बारे में बात करते हुए काफ़ी भावुक हो जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा. क्योंकि मेरी नज़र में ये निहायत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है हमारे सिविलाइजेशन का. इसको त्यागना मेरी नज़र में बड़ी 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 भूल होगी. इसके खिलाफ किसी भी तरह की दुश्मनी, अदावत, हॉस्टिलिटी पालना इज़ एटलीस्ट अ मिस्टेक, इफ़ नॉट वर्स. देखिए, हम लोग तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो कि हम मास मीडिया में हैं. जो लोग मास मीडिया में हैं उन्हें अच्छी तरह पता है. वो फिल्म लिखते हों, वो एडवर्टीजमेंट लिखते हों, वो पोस्टर लिखते हों, वहाँ उनको कम्युनिकेशन के लिए, अगर सरकारी पोस्टर है तो अलग बात है, आप अफोर्ड कर सकते हैं इनडिसाइफेबल लैंग्वेज इस्तेमाल करना. लेकिन अगर आप अपनी चीज़ सचमुच बेचना चाहते हैं तो आप बेहतर है कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो ख़रीदार समझ सकता हो. तो हमारे यहाँ ये एक हमारे रिफ्लेक्सेस में है. हमारे लिए कोई कंसेप्ट प्योर उर्दू और प्योर हिंदी का है ही नहीं. और प्योर तो कोई ज़बान, प्योर ज़बान का किस्सा ऐसा है कि आप एक प्याज ले लें और छिलके उतारना शुरू करें कि भाई असली प्याज ढूंढना है, तो वो छिलके ही प्याज है. प्याज छिलकों से अलग कोई चीज़ ही नहीं है. इसी तरह ज़बान में लफ्ज़ आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग वजह से, और ज़बान एनरिच होती जाती है. ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी जब छपती है तो उसमें जो प्रेफेस होता है उसमें वो बड़े नाज से कहते हैं कि इस बार हमने 50 वर्ड बढ़ाए हैं या 150 वर्ड बढ़ाए हैं. ये वर्ड है. हमारे यहाँ स्कीम ये है कि भाई वर्ड निकालो. तो हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम कितने वर्ड निकाल सकते हैं. मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे किसी ने भेजी, मुझे ये एडवर्टीजमेंट काफ़ी हो गया उसका ऐड. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने उसे बड़ा इश्तिहार दे दिया. तो जब मैं आ रहा था तो किसी ने कहा मुझे एक आके कि ये साथ ले जाइए, ये 383 वर्ड है जो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप ना इस्तेमाल किया कीजिए, इसके बजाय हिंदी के ये वर्ड हैं या फिर इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर लिए. लॉर्ड क्लाइव वगैरह ने तो यहाँ कुछ ऐसा जुल्म किया नहीं था कि हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएं. तो जिन्होंने किया था उनके खिलाफ है. तो अब वो मैंने वर्ड देखे, उनमें से कुछ बताता हूँ आपको. बल्कि कुछ बहुत ख़तरनाक बातें हैं. ख़तरनाक इसलिए है कि ये सरकारी मामला है. ये मैं वर्ड निकाल रहा हूँ. ये तो कोर्ट में जाने वाले हैं ना. जब आप रिपोर्ट लिखाएंगे
तो अल्टीमेटली जो आपका एफआईआर है या जो आपकी रिपोर्ट है या जो आपका बयान है वही तो जाएगा ना कोर्ट में। उसमें अगर आप ज़ख्म मत इस्तेमाल कीजिए और चोट इस्तेमाल कीजिए। ज़ख्म और चोट में फ़र्क है, वो सामने वाला छूट जाएगा। अरे साहब चोट लगी थी तो कोई बात नहीं, ज़ख्म ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो ज़ख्म का उन्होंने कहा ज़ख्म जो है मत इस्तेमाल कीजिए, ज़ख्म बहुत ज़्यादा उर्दू का होता है, तो चोट कहिए। अच्छा, इरसाल एक उर्दू का लफ्ज़ है जिसे वो निकाल रहे हैं, उसकी जगह प्रस्तुत है, गलत ट्रांसलेशन है। इरसाल का मतलब है भेजना, प्रस्तुत करना नहीं। प्रस्तुत तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, मगर यहाँ इरसाल नहीं कर सकता। मैं बम्बई से जाके कुछ आपको इरसाल कर सकता हूँ, यहाँ नहीं हो पाएगा। मतलब हिदायत, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने दिया है चेतावनी। नाउ दिस इज़ डेंजरस बिकॉज अगर वो कहता उन्होंने मुझे चेतावनी दी तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि चेतावनी नहीं दी थी। हिदायत का मतलब तो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, अच्छा लफ्ज़ क्या होगा? आदेश, सूचना, आदेश। आदेश। तो उसकी जगह, हाँ आदेश सही है, हाँ किसी को आदेश देना। निर्देश वुड बी डायरेक्शन, आदेश। आदेश, आदेश। अच्छा तहवील, तहवील जो है इज सेइंग दैट गिविंग समथिंग इन समवन्स कस्टडी, कि हमने ये चीज़ उसकी तहवील में दे दी है, कस्टडी में दी है। उसका उन्होंने कहा ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल कीजिए तहवील, इसी जगह इस्तेमाल कीजिए एक अरेबिक वर्ड जिसे वो हिंदी समझ रहे हैं, कब्ज़ा। एक तो ये अरेबिक का वर्ड है, दूसरे ये कि ये माने चेंज हो जाएंगे। अब अगर एक आदमी एफआईआर में या किसी सीरियस केस में ये गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है, इट विल इफेक्ट द केस। पुलिस के पास आप बोले ना, गिर दीजिए। अच्छा, कुछ जगह ऐसा है कि उनको शब्द नहीं मिले हिंदी में, तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, जेब तराशी, जेब से पैसे चोरी करना, ये हिंदी का ये लिखा है। अच्छा, मतलब जेब में अगर सोने का कलम है आप निकाल ले तो जेब तराशी नहीं है, पैसे ही निकालेंगे आप, वरना जेब नहीं कटी। अरे भाई जेब काटना बोल दो, जेब से पैसे निकालना क्यों? अच्छा, मुश्तबा, जिस पे अपराध करने का शक हो, आप मुश्तबा मत लिखिए, आप लिखिए इन पर अपराध करने का शक है। और इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि शक भी उर्दू है। हाँ। वादा मुआफ गवाह होता है जिसको आपने दे दिया कि भाई आप सरकारी गवाह बनते हैं ना, जैसे वादा मुआफ। तो दोषी को क्षमा करने का वचन देकर गवाह बनाना। अब ये तो ये सेंटेंस है, ये मीनिंग तो नहीं हुआ ना वर्ड का, तो मैं क्या लिखूं वादा मुआफ गवाह की जगह? आदि अपराधी, बार बार अपराध करने वाला। कुछ और भी मजे के दस्तावेज, जो कि हम सभी, जो भी वकील होगा उसे मालूम है दस्तावेज क्या है। जिसको नहीं मालूम है उसे मालूम होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या करेंगे दस्तावेज जानकर क्या होता है? भाई कभी मकान वकान ख़रीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो खुद ही बताएगा आदमी के दस्तावेज़ क्या होता है। मगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो दस्तावेज़ की कोई वैल्यू नहीं है। कौन इस्तेमाल करता है? दस्तावेज़ का मीनिंग है लिखित सामग्री जो प्रमाण के रूप में प्रयोग की जा सके। हाँ। अब ये मैं कैसे इस्तेमाल करूं दस्तावेज़ की जगह? सेंटेंस बनाइए आप। हाँ, कल मकान खरीदना है, दस्तावेज ले आइएगा। आप लिखित सामग्री ले आइएगा क्योंकि हमको इस्तेमाल करना है कल। नहीं, लिखित सामग्री जो प्रमाण के रूप में प्रयोग हो सके वो लाइए। प्रयोग ला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ लिखित सामग्री से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक वर्ड मना किया गया है, वो मेरी समझ से बाहर है, ढोर। नाउ ढोर इज अ प्योर इंडियन वर्ड। अलग अलग हमारे डायलेक्ट्स में नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है, इसलिए कि ढा, झा, घा, भा, ये तो हिंदुस्तान से बाहर कहीं है ही नहीं किसी भी लैंग्वेज में। हाँ, ढोर हम जानवर को कहते हैं। उन्होंने कहा ढोर मत इस्तेमाल कीजिएगा, पशु कहिए। तो फिर ढोर कैसे कहें?
क्या प्रॉब्लम, किसी को तो कहना पड़ेगा। गैर कानूनी, ये कौन नहीं जानता गैर कानूनी क्या है? उन्होंने दिया है कानून के विरुद्ध, कानून पे प्रॉब्लम नहीं होने, ये भी फारसी है। ये चुपके से निकल जाता है। हाँ, अच्छा सुनिए, 133 नंबर पे, इसलिए कि 383 है, 383 वर्ड्स, तो 133 पे है बयान। बयान मत बोलिए कि मैंने ये बयान दिया, उसका ये बयान है, नहीं, कथन। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े कथन और अच्छा, अब चलो भाई, हम मान गए, हम कथन ही लिखेंगे, बयान नहीं लिखेंगे, लेकिन 20 नंबर पे कलमबंद का माना लिखा है बयान लिखना, तो अब हम 20 नंबर माने कि 133 नंबर माने? 133 नंबर में उन्होंने मना किया है कि आप कथन कहिए, कलमबंद में कह रहे हैं बयान लिखना बोलो। तो अब क्या किया जाए? इससे भरी हुई है चीज़, भरी। ये तो मैं आपको ऐसे मतलब नहीं, जो 383 हैं उनमें से 350 तो ऐसे हैं कि आप कहें कि यार किसने किया है। जो अटेम्प्ट, अगर नियत ये है कि लैंग्वेज सिंपल की जाए, वन शुड रेस्पेक्ट दैट। भाई कानूनी ज़बान इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसे सिंपल होना चाहिए ताकि आम आदमी समझ सके। बहुत ऑब्सलीट वर्ड्स उसमें हैं। एक वर्ड है जो कि पर्शियन और अरबिक से मिलके बना, शोरो गोगा। मैं चैलेंज करता हूं कि 90% उर्दू के स्टूडेंट्स, बल्कि शायद ज़्यादा, 98% गोगा का मतलब नहीं बता सकते। गोगा का क्या मतलब? गोगा अरबिक में शोर के लिए है वर्ड, और शोर पर्शियन का वर्ड है, शोरो गोगा। ये उन्होंने नहीं चेंज किया है, उन्होंने हिंदी में भी यही दिया है, शोरो गोगा। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बयान पे है। हाँ, दस्तावेज से है, दस्तावेज पे है, बयान पे है, और मुजरिम पे है। मुजरिम मत कहिए, अपराधी। तो ये जो है, अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका इंटेंशन अगर ये है कि भाई लैंग्वेज ऐसी हो कि सबकी समझ में आए, तो प्लीज आस्क सम लिंग्विस्ट, सम पीपल हु नो द लैंग्वेज। ये कोई इस तरह से किसी ने भी कर दिया है डिपार्टमेंट में, इससे तो बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने बात सीरियसली ले ली, वो अपनी रिपोर्ट में, अपने बयान में, मतलब कथन में, अपनी एफआईआर में, एफआईआर का अभी एफआईआर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अंग्रेजी सब चलेगी। इसलिए कि ये 3 कॉलम्स में है। ये पहले उर्दू में है, जो ये नहीं कीजिए, फिर ये हिंदी में है, दिस इज प्रेफरेबल, और इंग्लिश, फिर इंग्लिश में, वरना ये बोल दीजिए। अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं उनको कि आप अपने बयान में 4 लफ्ज़ अंग्रेजी के इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं। अब क्यों नहीं है मालूम नहीं, एक्चुअली अंग्रेज़ों से कभी प्रॉब्लम रही नहीं है। ये भी सच है। तो ये अगर करना है तो इफ दिस इज योर इंटेंशन, फाइंड सम पीपल हु नो द लैंग्वेज, पीपल हु विल बी हेल्पफुल एंड मेक सम सेंस। ये तो एक मजाक है बहुत जी। हाँ, ये बात मैं चाह भी नहीं रहा था कि सब सुने। खैर, अब सुन लीजिए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बहुत अजीब बात है। नहीं, और ये मैं चाहता हूँ यहाँ कोई ना कोई तो होंगे पुलिस के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हो ही नहीं कोई। अच्छा सर, ये देखिए, इसको ठीक करवाइए। मतलब अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। मतलब हम बैठ के करें साथ में, लेकिन हमको ऐसे लोग चाहिए जो ये ज़मानों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें बड़े गलत ट्रांसलेशन है, और बड़े, यानी अगर ये सीरियस बात नहीं होती तो हंसने वाली बात होती। नहीं जावेद, ये माफ़ कीजिएगा, मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन ये इस पे ये जो ट्रांसलेशन, इन्वेंशन ऑफ टर्म्स जो हुआ है, इसके बारे में हम लोग बहुत देर तक बात कर सकते हैं कि इसके मोटिवेशंस क्या थे। जड़ में पाजीपन है या बेवकूफ़ी है, लेकिन इसके इरादे जो हैं, मतलब कम चॉइस दी आपने। वैसे चॉइस वही है, उसके अलावा नहीं है, तीसरी नहीं है।
मसलन मसलन वकील से प्रॉब्लम है ना, आप क्योंकि इतनी सारे एफआईआर वगैरह हो रहे थे, वकील से प्रॉब्लम है। एडवोकेट अंग्रेजी है, लफ्ज़ क्या बनाया? अधिवक्ता। ये अधिवक्ता क्या है? ये संस्कृत साउंडिंग एडवोकेट है, अधिवक्ता, दैट्स ऑल, है ना। तो ये यानी ये, लेकिन हम लोग टाइम शायद थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, ये बात कहीं और ले चलें, क्योंकि इसका मजाक ही उड़ा सकते हैं हम, या दुख मनाएं कि क्या किया है, कि अच्छी खासी जो ज़बान थी हमारी, उसका क्यों गुड़ गोबर किया है, या कोशिश की है कम से कम, इसकी बात कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बात को दूसरे ज़रूर ज़रूर, हाँ। बल्कि मैं समझता हूँ बात को वहाँ ले चलिए जहाँ से शुरू हुई थी। हकीकत ये है कि जो हमने पहले ही कहा कि भाई लैंग्वेज तो अपनी ग्रामर है, और हिंदी उर्दू की ग्रामर एक है। हाँ। ये ज़रा कभी कभी बिला वजह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और टची टॉपिक हो जाता है। मैं इसे बहुत संभाल के कहना चाहता हूँ कि क्या ये नहीं हो सकता कि जब इतना इनमें कॉमन है, मतलब एक आप उर्दू का एक भी जुमला नहीं बोल सकते बगैर हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किए। कोई भी रीजनेबल हिंदी की जो डिक्शनरी है उसमें 6 से 7 हज़ार वर्ड पर्शियन के होंगे। हाँ। अच्छा, तो हमारी सिंटेक्स एक है, हमारी वोकेबलरी 90% एक वोकेबलरी है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक लैंग्वेज जिसको हम भूल गए, जिसका नाम था हिंदुस्तानी, कि अगर हम कुछ स्कॉलर्स, कुछ राइटर्स, कुछ प्रोफेसर इस पे बैठे जिन्होंने रिसर्च की हुई लैंग्वेजेस पे, और एक कॉमन डिक्शनरी हिंदुस्तानी की डेवलप करें कि जिसमें दोनों लैंग्वेजेस के जो अच्छे वर्ड्स हैं, उम्दा वर्ड्स हैं, वो एक जगह जमा हो। ये ज़रा सोचिए हमारी वोकेबलरी क्या होगी। जमा करें जितने अच्छे पोएट राइटर हिंदी में हुए हैं, जो अच्छी राइटिंग की गई हिंदी की, जो उर्दू की गई है, उसको सबको एक जगह लाएं। यहाँ क्या होता है, कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, ख़ासतौर से उर्दू में, ये क्या उर्दू ख़त्म करने की तरकीब हो रही? नहीं, मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है, बल्कि जो खाना खाली था मज़हब का उसमें भी मैंने उर्दू ही रखी है। लेकिन सर ये सच है, मान जाइए। तो किस्सा ये है कि आपको उर्दू पढ़ानी है और उसी नस्तालिक में ही लिखनी और पढ़नी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहिए। आपको सिर्फ हिंदी राइटर्स पढ़ाने हैं, आपको सिर्फ, माफ़ कीजिए एक बात मैं रिकॉर्ड करेक्ट कर दूं, प्रेमचंद जी जो इनके दादा थे वो पहले उर्दू में बरसों तक लिखते रहे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो आप सिर्फ हिंदी राइटर मत कहिए उन्हें उर्दू हिंदी राइटर कहिए। तो जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े दिनकर, जो आपने क्या मतलब शायरी है उनकी, आदमी सुन रहा हो तो खून गर्म हो जाता है। ये शायरी, ये सब एक जगह क्यों नहीं जमा हो सकती? और बच्चों को पूरी वोकेबलरी क्यों नहीं दी जा सकती? ये दोनों जो फॉर्म्स हैं लैंग्वेज की, वो एक जगह अगर आ जाएं, वो हिंदुस्तानी के अलावा तुम हिंदी डिपार्टमेंट चलाओ, तुम उर्दू डिपार्टमेंट चलाओ, हमें कुछ नहीं उनसे शिकायत है, और आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं दोनों। हम ये हिंदुस्तानी को लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि इन दोनों ज़बानों की सारी खूबसूरती, सारी अच्छाई, सादा अच्छा एक जगह आए और वो पढ़ाए। अब उसमें बात होगी स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट के मामले में भी लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये आप हिंदुस्तानी जो इसमें लाएं, मेरी गलत सही राय जो है, उर्दू चल रही है, उर्दू ख़त्म नहीं हुई, उर्दू पढ़ाई जा रही है, मैं फिर एम्फसाइज करो, लेकिन ये हिंदुस्तानी देवनागरी में रखें। इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान में ज़्यादा लोगों की तादाद है जो हिंदी पढ़ते, नहीं, इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक स्क्रिप्ट। यू जस्ट कैन नॉट मिसप्रोनाउंस अ वर्ड इन देवनागरी, जो दुनिया की किसी और लैंग्वेज में नहीं है। मैं तो फ्रेंच इतना जानता नहीं, ज़रा थोड़ा बहुत मुझे तो लगता है कि फ्रेंच का कोई भी वर्ड लिखो तो उसमें ज़्यादातर लेटर जो हैं वो तो खामोश गवाह होते हैं, वो चुपचाप खड़े, भाई क्यों आप है आखिर जी, आ गया था तो खड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस वर्ड से। वैसे तो आप मतलब मिसप्रोनाउंसिएशन के चांस ही चांस है किसी भी ज़बान में। यहाँ पर आपको हिलने नहीं देती है स्क्रिप्ट कि ये तो जो लिखा है वही पढ़ेंगे आप, उसके अलावा चॉइस ही नहीं आपको।
एक मशवरा और भी है लोगों का, वो मेरा नहीं लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोग के सामने रखूं। देखिए क्या सोचिए आप लोग भी इसके बारे में कि एक ऐसी हिंदुस्तानी हम क्यों नहीं जिंदा कर सकते पूरी तरह से, जो मौजूद है, जो बिखरी हुई है, उसको समेट के एक जगह कर दो। अच्छा, अब स्क्रिप्ट पे सवाल हो जाएगा तो हम कहते हैं भाई तुम उर्दू ही नस्तालिक में पढ़ाओ, तुम हिंदी देवनागरी में पढ़ाओ, हम जो इस्तेमाल करें हमारी मर्जी है। और भाई तुमने भी तो कहीं से ली है ना स्क्रिप्ट, तुमने तो संस्कृत से ली है, तो हम भी ले रहे हैं संस्कृत से, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? अच्छा, दूसरी तरकीब ये हो सकती है, वो भी प्रैक्टिकल है, वो ये है कि आप इसका रोमन कर दीजिए। रोमन में क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश तो भेजते ही हैं। एवरी इंडियन वर्थ हिज सॉल्ट और हर सॉल्ट सेंड द चाइल्ड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इंग्लिश के तो लेटर्स को जानता ही है, उसको दूसरी स्क्रिप्ट नहीं सीखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि तोड़ो लिखो तो TODO टोडो लिखना पड़ेगा आपको। जो हमारी साउंड हैं बहुत सारी ड़ा की, ग़ की, अब गालिब आप GH से लिखते हैं इंग्लिश में, घा की, हाँ, तो ये सारे प्रॉब्लम होंगे, झा की। तो उसमें जो इनके वो है, क्या बोलते हैं उसे, उल्टा कॉमा लगा दिया, ये वो ऐसे में जो ये सारे इनको कहते क्या है, डायक्रिटिकल मार्क्स। डायक्रिटिकल जो है वो अगर हम तय कर लें यूनानिमसली कि ये अगर डी के ऊपर यूँ लगा है तो ये डी नहीं है, ये अड़ा है। ये थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आप वो उसमें करने को बच्चे को 2 स्क्रिप्ट नहीं सीखनी पड़ेंगी, इसलिए कि बच्चा तो, आपको बताऊं कितने लोगों को मालूम है नहीं मालूम, आज फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लड़के हीरो हीरोइंस आते हैं उनको हम डायलॉग जो है वो रोमन में देते हैं, वो और कुछ पढ़ ही नहीं सकते। तो ये आसानी हो सकती है। आपकी क्या राय सर? नहीं मतलब, लेकिन अरे माफ़ कीजिए, मैं खुद ये भूल गया था। नहीं जादू, लेकिन हम ये स्क्रिप्ट के भी झगड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, क्योंकि स्क्रिप्ट का बहुत ही पेचीदा सवाल है। मैं वो फौरन आएगा, ये मुझे मालूम है। ये लोग जो हैं, हाँ, ये, और मुझे इस मामले उर्दू वाले ज़्यादा बहुत सेंसिटिव है, सब हमारी स्क्रिप्ट का क्या होगा। तो आप नहीं, स्क्रिप्ट चले, हाँ, स्क्रिप्ट चले, और वो भी चले, नागरी चले, रोमन चले, है ना, लेकिन इस पचड़े में नहीं। जो ज़रूरी बात है वो ये कि जो चीज़ बनी है उससे हम दूरी बनाने की न बनाएं और किसी दूसरे को बनाने न दें, है ना। ये कि ये जो हमारी चीज़ है, ये हमारी वसीयत है, ये हमसे छीनो नहीं। और ये हमने कहा था, बिल्कुल ही आपकी एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें आप जिक्र करते हैं कि ये जो ज़बान बनी है हमारी, ये इसकी ताकत क्या है, ये इस बात से जाहिर होता है कि हम लोगों में तमाम, जब भी हम कोई अच्छे से फॉर्मुलेटेड कोई बात कहना चाहते हैं, कोई क्लेवरली वेल बैलेंस्ड एक्सप्रेशन ढूंढते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हमारे पास, आप मतलब आप तो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं से आए कोई, लेकिन जब स्पीच एंड करनी होती है तो कोई शेर ही मिलता है ना। तो ये क्या बात है? नहीं, ये तो किसी ने सर्वे किया था कि पार्लियामेंट में जो पोइट्री पढ़ी गई है वो मोर देन 90% जो है वो उर्दू गज़ल से की गई, और वो समझ में भी आता है क्यों। उसकी वजह यह है कि गज़ल का फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 लाइन में पूरी बात कहनी पड़ती है, तो 2 लाइन जो होती हैं वही कंप्लीट स्टेटमेंट दे देती हैं, तो उनकी कोटेबिलिटी बहुत हाई है। वरना आप पूरी पोएम सुनाएं तो ज़रा लंबा हो जाएगा मामला, तब तक तो एडजॉर्न भी हो सकती है। सर आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं सर। तो लेकिन ये कि 2 लाइन में क्योंकि आप पूरी बात कह सकते हैं, मगर मैं साथ में सर इजाज़त दें आप लोग तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और कोई प्रेजेंट कंपनी एग्जम्प्टेड, मैं ये उम्र हो गई, मैं आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी पॉलिटिशियन को मैंने शेर सही पढ़ते नहीं सुना। इनवेरिएबली गलत पढ़ते। हमारे एक दोस्त थे, वो शेर सही नहीं पढ़ते थे, तो हमने उनको कहा, हम भी कॉलेज में थे, तो भाई 10 रुपये बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए, तो हमने कहा हम तुम्हें 10 रुपये देंगे। हम दोस्तों ने कहा 3-4 ने, तुम एक शेर सही सुना दो।
तो कहने लगे ये तुम लोग बेकार बातें करते हो, मुझे डिमोरलाइज मत करो, मैं काफ़ी शेर सही पढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा पढ़ो। तो कहने लगे कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती है। तो हमारे ये बहुत सीरियस मामला है पॉलिटिक्स में, और इस मामले में सब एक झंडे के नीचे। गलत शेर उस पे लिखा झंडे पे और सब नीचे खड़े हो उसके। पढ़ते ही नहीं, क्या पता नहीं क्या वजह। दादू जी एक और जो चीज़ हमारे दिल में है और हम चाह रहे थे कि ये मौका मिला है, लोग भी हैं, कि आपसे पूछें कि हम ज़ाहिर है कि हिंदी उर्दू की ही बात सोच रहे थे, और ये सोच रहे थे कि फिर कि ये जो चीज़ हम सब लोगों ने मिल के बनाई है, हज़ारों साल में बनाई है, ये हमारे एज अ पीपल, हमारे सेंटिमेंटल एजुकेशन का ज़रिया, सबसे बड़ा आर्काइव जिसमें कि हम सीखते हैं एज अ पीपल हाउ टू लिव, हाउ टू लव. It does not happen in families. It does not happen in schools, unfortunately. It happens here. This is where in the classical archive as well as in the popular archive it happens. And I can't think of anyone better than you to tell us about this aspect of Urdu. देखिए, एक तो दो बातें हैं इसकी उर्दू के बारे में। एक तो इसके फोनेटिक्स पे बहुत सीरियसली काम किया गया, इतना सीरियसली कि परहैप्स दे ओवरडिड इट। ये गालिब का जब दीवान उन्होंने छपने से पहले अपने दो दोस्तों को दिया कि ये इसे पढ़ो और जो तुम्हें ख़राब लगे वो काट दो। अच्छा, ये देखिए कितना फॉरवर्ड लुकिंग आदमी था। उस ज़माने में तो एडिटिंग वगैरह का कोई रवाज नहीं था, शायर जो लिखते थे छपवा देते थे। उस ज़माने के कई शायरों के 5-5, 6-6 ह्यूज वॉल्यूम्स हैं, ये सारी पोइट्री उनकी लिखी। गालिब की तो चंद हज़ार शेर हैं, एक पतली सी किताब है दीवान गालिब, उसी की वजह से आज तक वो जिंदा है। तो उसने कहा इसमें से काट दो। ऐसा कहते हैं कि 1/6 पोइट्री उन दोनों ने काट दी। उनमें से एक साहब जो थे वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो कि अल्टीमेटली काना पानी में 1857 के बाद वहाँ उनकी भेज दिए गए और वहाँ मरे। तो उन्होंने एक शेर काट दिया जिस पर मुझे सख्त एतराज़ है कि ये क्यों काटा। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। कि ओ गॉड, वेयर इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, because the sphere of possibility is but equal to one footprint. Sphere of possibility. ऐसा लगता है कि स्पेस में जाने के बाद, इंसान के स्पेस में जाने के बाद ये शेर कहा गया, लेकिन ये शेर उन्होंने काट दिया। गालिब का जो फाइनल दीवान था, थैंकफुली कहीं दूसरी जगहों से हमें शेर मिल गया, उसमें नहीं है ये। और क्यों काट दिया? पा पाया, बैड साउंड, पाया पे काट दिया गया शेर। तो एक इसमें बरसों तक इसकी एस्थेटिक्स और इसकी फोनेटिक्स पे बेपनाह काम हुआ है। तो इसलिए आपको जो उर्दू पोइट्री में जो फ्लो, जो नरमी, जो एक मेल्टिंग क्वालिटी वर्ड्स में मिलेगी, एक दूसरे में मेल्ट हो रहा है जैसे, वो बड़ी रेयर है, बहुत रेयर है दुनिया के लिटरेचर में। तो ये एक खूबी है। अच्छा, फिर दूसरे ये कि भाई घर में माँ बाप हैं, स्कूल में टीचर है। अब ये प्यार मोहब्बत की बातें कौन सिखाएगा? इसके लिए तो पोइट्री चाहिए ना आपको, या गाना चाहिए। तो ये जो सारा डीप एनालिसिस ऑफ process of love and the feeling of love and emotion and pining and waiting and meeting, इसकी जो डिटेल, माइनर डिटेल्स हैं और जो फाइनर पॉइंट्स हैं और उसके क्या क्या एंगल हैं जो उर्दू पोइट्री ने कैप्चर किए हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको शेर इसलिए थोड़ी अच्छा लगता है कि शेर अच्छा है, आपको शेर इसलिए अच्छा लगता है कि वो आपके दिल की बात है, तब अच्छा लगता है। और इस मामले में जो बड़े बड़े शायर हैं लोग, मीर, गालिब, मैं मीर और गालिब के बाद गज़ल का सबसे बड़ा शायर रघुपति सहाय फ़िराक को मानता हूँ।
मुझे एक मर्तबा अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप इतने बड़े फिराक साहब के क्यों, हालांकि फिराक साहब तो उनके फादर के कलीग थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो क्यों हैं आप इतने बड़े फैन, क्या बात है? मैंने कहा मैं, आप एक्टर हैं तो आप ही को बताता हूँ आपकी लैंग्वेज में, कि अगर ऐसे मैं आपको सैकड़ों शेर दे सकता हूँ फिराक साहब के, कि अगर आप उन्हें सही तरह से पढ़ेंगे और सही एक्सप्रेशन से पढ़ेंगे तो आप कहें सोचेंगे कि यार ये एक्सप्रेशन तो मैंने कभी किसी फिल्म में दिया ही नहीं है, इसलिए कि वो बात ही अनोखी है। वो जिस मूड से लिखा गया है शेर, वो मूड हर एक का आदमी कैप्चर ही नहीं करता। अब मतलब एक मामूली से मैं आपको उनके बहुत सिंपल शेर सुनाऊंगा, सुना दूँ? चलिए शुक्रिया। तो कोई आया ना आएगा लेकिन क्या करें अगर न तेरा इंतजार करें, क्या करें अगर न तेरा इंतजार करें। ये सुनिए कि एक ये मिलना, एक वो मिलना, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी रिलेशनशिप में। एक ये मिलना, एक वो मिलना, क्या तू मुझको छोड़ रहा है, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया, मगर हमने इतने कॉन्शियस लेवल पे सोचा नहीं। अब जब हम ये शेर पढ़ते हैं तो हमें मालूम है हाँ, वो जो धीरे धीरे इंटीमेसी डिक्लाइन हो रही है, वो जो एक आवाज़ में सर्दी आ रही है, वो जो अब फॉर्मेलिटी से आ रही है रिलेशनशिप में, ये रिश्ता टूट रहा है। टूट गया नहीं है, टूट रहा है। टूट गया तो बड़ी मामूली बात है। क्या बात, क्या क्या शेर है उनके कि आपको ये कभी सोचा ही नहीं होगा। वो तवानाई ये मिजाज नहीं, बस इनके हुक्म पे चल रहा हूँ मैं तो, जैसा कहती हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। इसे बहुत बरसों से प्रॉब्लम नहीं हुआ लाइफ में कोई। आपका नाम जरूर जानना चाहूँगा। दिलचस्प है आप, हैं जी जी। अच्छा, वो तवानाई ये मिजाज नहीं, टेम्परामेंट में आज वो स्ट्रेंथ नहीं है। छोड़ दे मुझको लेकिन आज नहीं, आज नहीं। अब एक बात बहुत से लोग मुंह से माने ना माने, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनका है और फीलिंग कि वो कहते हैं कि दिन रात की वो खिलवतें, खिलवतें तन्हाई में मुलाकातें, अकेले में मुलाकातें, दिन रात की वो खिलवतें, और अब ये हाल है जी चाहता है साथ कोई तीसरा भी हो। जी चाहता है साथ कोई तीसरा भी हो। बहुत बारीक बात है, ऐसा कोई कहता नहीं है। कि निगाह होना मतलब तवज्जो देना, कि हम अहले गम की तमन्ना ही क्या, हम दुखियों की, गम वालों की, हम अहले गम की तमन्ना ही क्या, निगाह तेरी न हो तो खैर, अगर हो सके तो अच्छा है। आप देखिए, खैर और अच्छा जैसे मामूली वर्ड से शेर बनाया है। ये अच्छा वर्ड तो उनका बहुत कमाल यूज़ करते थे कि या खैर, अब खैर कोई लफ्ज़ है इतना बड़ा कि वह कमाल कर दिया। एक उम्र गुजारी है किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो, खैर। क्या बात। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की, कुछ तो किया है। तो अब ऐसी ऐसी बातें आती हैं इनकी शायरी में, और इतने नाजुक लम्हे जो क्या बोलता है, मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, कलब का शेर है। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। अब ये कौन सा, कहाँ से आई है बात है ना, कहाँ से ये बात कहाँ से आई? अच्छा, अब रंजिश बेजा, रंजिश तो कॉमन वर्ड है, रंजिश सही ने कॉमन कर दिया उसे, खुन्नस, या इसमें है कि रंजिश मत लिखिए, खुन्नस लिखिए। अच्छा, इस लिस्ट में है। हाँ, इस लिस्ट में देख लीजिएगा, लिस्ट तो मिल जाएगी आपको उस पर।
उस पे है शायद नेट पे। तो रंजिश बेजा यानी बेकार की खुन्नस। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त। मुझसे वो तेरी रंजिश बेजा भी नहीं, कि अब वो भी नहीं रही जो एक बेकार की चुड़ थी जो तुझे मुझसे, अब वो भी नहीं रही, मेहरबान हो गया तो ऐसी मतलब। अब ये देखिए, दो दो लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ और पूरी बात हो रही है। यही गज़ल की खूबी है, और ये गज़ल जो है इसीलिए कोटेबल है इतनी, कि वो दो लाइन में पूरी बात कहती है। नहीं, और ये बात जो कि ज़बान में आ जाती है जावेद, वो जो उर्दू की रवानी, हम सब उसकी टेक्निकल ज़मीन न जानते हों, लेकिन हम सब पहचानते हैं कि अगर उर्दू से वाक़फ़ियत है तो आपकी ज़बान में एक तरह की रवानी, सिर्फ क्योंकि कान में ये बातें पड़ी हैं इसलिए ये कुछ एक रवानी आ जाती है ज़बान में, है ना? सही, ये तो है। और ये अब ऐसे मैंने एक बात कही थी इसमें रिश्ता में, कि गालिब पे कुछ वहाँ डिस्कशन था मेरा किसी के साथ, तो मैंने कहा कि गालिब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल था, गालिब हिंदुस्तान से बाहर नहीं हो सकता था। तो उन्होंने भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब जीनियस से कहीं भी हो जाता। जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनमें क्रिएटर और क्रिएशन अलग हैं। क्रिएटर इज़ द मास्टर, ही इज़ द किंग, ही इज़ द जज, ही विल पनिश यू समडे और रिवॉर्ड यू, वो एक अलग है। जो वेदांत में क्रिएटर और क्रिएशन का कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, वो एक ही है। You are one form of that same great energy or that identity। कुछ बाहर हो गए आप, अगर ठीक हो जाएगा तो फिर वापस उसमें जुड़ जाएंगे आप, जिसे कहते हैं मोक्ष मिलना। अब गालिब का शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अब ये तो तसव्वुर जो है, ये तो वेदांत है, अद्वैत। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेते हो जो अबराग जुस्तुजू क्या है। ये ईरान में जलता है जिस्म, अरब में जलता है, उज़्बेकिस्तान में जलता है, कहाँ जलता है और कहाँ उसे कुरेदा जाता है उस राग को। ये शेर हिंदुस्तान से बाहर पॉसिबल ही नहीं था। तो गालिब के यहाँ जा बजा आपको जो फ़लसफ़ा मिलेगा या जो उसकी थॉट्स में बहुत जगह, तो लगता है कि ये एक, और उसकी ज़बान और उसका कहने का तरीक़े में बहुत उसने पर्शियन लिटरेचर का असर है, और होना भी चाहिए, क्या हर्ज है, जो चीज़ अच्छी है कहीं से भी हो ले लो। और हम आज भी लेते हैं, चाहे वो हमारी ज़बान हो, चाहे हमारी मैनरिज्म हो, चाहे हमारी वैल्यूज़ हो। हमारी वैल्यूज़ क्या वही हैं जो हमारे नाना दादा की थी? नहीं है, चेंज हुई हैं। आप ये कहें उस पर कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, गलत बात होगी, सच बात नहीं होगी। कल्चर, वैल्यूज़, एस्थेटिक्स, ये डायनेमिक है, ये कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। अगर ठहर गई है तो मर जाएगी। वो जिंदा है जब तक वो चेंज हो रही है, जब तक वो दूसरे धारों को शामिल कर रही है अपने अंदर, वो नदी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और जिस दिन वो बंद कर दिया उसने अपने आप को चारों तरफ, वो सूख जाएगी। कल्चर तब तक जिंदा है जब तक चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये सोचें कि इसमें से ये बाहर से क्या क्या बाहर का निकालेंगे आप, निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि फिर कोई बताएगा ये भी बाहर की चीज़ है, ये भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जो लोग बाहर निकालने वाले थे वो हैं अपने पास हैं, पड़ोस पे देख लो। वो प्योर होना चाह रहे थे, उनके तो मुल्क का ही नाम है पाक है। तो वो कितने पाक हो गए आप देख लो। वो ठीक लगते हैं, आप भी पाक हो जाइए। है जी जावेद साहब, ये हमको ये पर्चा पकड़ाया गया तो उसमें ये था कि कुछ और, क्योंकि जाहिर इन सब बातों के बाद लगता है कुछ लोगों के मन में भी कुछ, अरे वाह, जरूर 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 एक हाँ कम से कम 10-15 मिनट तो विल बी ऑनर्ड।
विल बी ऑन। इससे पहले तो मालूम होगा कि आप सुन रहे थे, जिससे बड़ी खुशी होगी हमें। फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो अब ये माइक कैसे जाएगा मगर वहाँ तक? ये जिम्मा किसी और का है ना? तो जी जी, आप हैं। द फर्स्ट पर्सन। अच्छा, ओके। माइक वहाँ भेजिए। इट्स अनलाइकली। सबको सुनने में नहीं आएगा, आप भेजिए ना भाई, लंबे रास्ते से जा रहे हैं। चलो ठीक है। मेरा ये सवाल है कि जो अभी आपने एग्जाम्पल्स दिए उसमें उर्दू में 2 लाइनों में एक इमोशन व्यक्त हो जाता है, क्या हिंदी में नहीं हो सकता है? नहीं, ये 2 उर्दू की लाइनों में? खूबी नहीं है, ये गज़ल की हिंदुस्तानी। खूबी है। जैसे मराठी में भी गज़ल कहते हैं, गुजराती में भी गज़ल कहते हैं, पंजाबी में भी गज़ल कहते हैं, वहाँ भी यही है। आप पंजाबी जानती हैं? नहीं नहीं जानती। बहरहाल मैं यकीन रखता हूँ कि यहाँ बहुत से लोग होंगे जानते होंगे। मैं एक बहुत अच्छा शेर आपको पंजाबी गज़ल का सुनाता हूँ। कुछ उंज भी रहवा औखियाँ सन, कुछ गलिज गमादा तौक भी सी। कुछ रास्ते भी मेरे मुश्किल थे और कुछ मेरे गले में गमों का तौक भी लटका हुआ था। कुछ उंज भी रहवा आँखियाँ सन, कुछ गलिज दमादा तौक भी थी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी। तो ये गज़ल की खूबी, वो मैं आपको उर्दू की नहीं बता रहा था। गज़ल क्यों? अरे गज़ल तो बाद में आई है, दोहे क्या है? 2 लाइनों में क्या क्या कह दिया लोगों ने। क्या रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम। अब आप देखिए, ये जो प्रॉब्लम, जो डायलेमा आज हमारा होगा, वो 500 साल पहले शायद लिख रहा है। ये पोएट लॉरेट था अकबर का। रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले न राम। देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं कि उल्टे से मिल जाए। देखते अच्छा, यहाँ पे एक साहब, देखते हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, ये सच है। जी जी। हाँ, हेलो। हाँ, तो मैं सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर टॉकिंग, उर्दू एज अ लैंग्वेज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, इन दिस इंडिपेंडेंट इंडिया, वाज टोटली नेग्लेक्टेड बाय द रिजीम, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में जहाँ की वो एक बड़ी ज़बान थी, राइट आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, गोविंद बल्लभ पंत, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस, कम्स अप विद एन ऑर्डर कि कोई भी ऑफिस का काम उर्दू में नहीं होगा. You have to learn Hindi in order to do. Question, please. Yeah. So what I'm trying to say कि apart from state, ये rather than कि उर्दू इस तरीके के एक मजलिस की भाषा बने और यहाँ बैठकर हम इस पर सोचें कि क्यों मर गई, क्यों मर रही है, क्यों धीरे धीरे ख़त्म हो रही, क्योंकि मैं इस दौर से आता हूँ, हम लोगों को ये नहीं मिला मौका कि हम इसे पढ़ सकें, हम इसे समझ सकें. और ये कुछ बहुत ही लैविश और एग्जॉटिसिज्म जो इस लैंग्वेज के साथ एक और एसोसिएट होता है इस टाइम पे, खासकर जब एक बहुत बड़ा मेजॉरिटेरियन इम्पल्स है. मतलब 60s में मुस्लिम सोशल मूवीज़ बन रही हैं, उर्दू का इस्तेमाल सिनेमा में गज़ब का हो रहा है, इंस्टीट्यूशन से वो ख़त्म हो रही है, स्टेट से ख़त्म हो रही है. तो ये प्रॉब्लम, इस डायलेमा, इस पैराडॉक्स को कैसे एड्रेस किया जाए? आपकी मदर टंग उर्दू है? आपके पेरेंट्स उर्दू ही पढ़ते थे या पढ़ते हैं? क्या आपकी मदर टंग क्या है? भोजपुरी. भोजपुरी है, अच्छा. और एजुकेशन आपको हिंदी में मिली? हाँ, हिंदी इंग्लिश. तो ये उर्दू से आपको दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? नहीं, मैं सीरियस सवाल. क्योंकि उर्दू हमने पढ़ा, हिंदी में जब हम पढ़ने लगे, हम जो सुनते हैं, हमने जो सिनेमा देखा, जी, है ना, इन सारी चीज़ों से. ये सही है, ये सही है कि जो रिजीम्स आई गई, उनका रवैया उर्दू के साथ अच्छा नहीं रहा. कुछ का बहुत ऑब्वियसली, कुछ का इन अ वेरी सेटल मैनर. और अब जो है, एक ये ज़बान की एक अजीब कहानी है, इससे बहुत कुछ पता चलता है. इस स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले हिंदुस्तान में कम से कम होते जा रहे हैं, और उर्दू को देवनागरी में पढ़ने वाले हर रोज़ बढ़ रहे हैं. जो उर्दू पोइट की किताब देवनागरी में छप जाती है, वो 24 वॉल्यूम 25 वॉल्यूम एडिशन तो छपना बड़ी बात नहीं है, इतना छपती, इतनी पॉपुलर.
आप पूछ लीजिए किसी पब्लिशर से, किसी दुकान पे जाके, कि जो उर्दू पोइट्स हैं उनकी जो देवनागरी में किताब आती है वो कैसे बिकती है। तो उसकी पॉपुलैरिटी आवाम में बढ़ रही है, घट नहीं रही है, कि वो देवनागरी में अवेलेबल है, वो पढ़ पाता। अब वो क्या है कि स्क्रिप्ट तो स्कूल में सीख सकता था, तो वो स्कूल में अवेलेबल नहीं है उसे, वो कहीं भी नहीं है। मतलब मैंने अपने बचपन में जिन स्कूलों में पढ़ा है और वहाँ उर्दू भी थी, अब नहीं है, तो वो सब ठीक है, ये भी है। लेकिन मैं एक बात बाय एंड लार्ज आपसे नहीं, उर्दू वालों से पूछना चाहता हूँ, आपके स्कूल में तो बच्चे को रिलीजन भी नहीं सिखाया जाता है, तो आप बच्चे को रिलीजन कैसे बताते हैं? आप अपने बच्चे को अपनी मदर टंग क्यों नहीं सिखाते? आपको इतनी मोहब्बत है उससे, क्यों नहीं सिखाते? किसने रोका आपको? ज़रा देखिए, जूस को देखिए, 2000 साल तक उनके पास जगह नहीं थी कि हिब्रू लैंग्वेज को रखें कहाँ, रखने की जगह नहीं थी, और 2000 साल तक उन्होंने लैंग्वेज को जिंदा रखा, इसलिए कि उन ज़बान से मोहब्बत थी। आपको अगर उर्दू से मोहब्बत जिसे भी है, वो प्राइवेटली भी पढ़ सकता है, और घर में आप अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाइए ना, किसने मना किया आपको? या आप उम्मीद भूल जाइए कि आपको इस्टेब्लिशमेंट या पास दैट बी विल हेल्प यू इन दिस, दे वोंट, इट डजंट सूट देम फॉर मेनी रीजंस। मगर आपको तो मोहब्बत है, आप उर्दू किताबें खरीदिए, उर्दू मैगजीन्स लगाइए, किसने रोका है आपको? सिर्फ ज़बानी बात और पूरी जिम्मेदारी सरकार पे रख देना जो है वो ठीक नहीं है। मैं भी जी हाँ, नहीं, ये जो आप जो बात कह रहे हैं ना, ये असल में तो ये पैराडॉक्स समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक तरह की निग्लेक्ट, हॉस्टिलिटी, कुछ कहिए, ये एक चीज़ है जो कि समझना ज़रूरी है। और हम लोगों ने कुछ इशारतन कुछ बातें कही हैं कि ये एक इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग और वर्स, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैराडॉक्स, कि अलॉन्ग विथ the neglect of Urdu, the official neglect of Urdu, there is also an enormous longing for it. वो उर्दू के नाम पे आप कुछ कीजिए, हुजूम इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये भी फिर समझने की चीज़ है कि आखिर क्यों, वो क्या चीज़ है जिसका कि प्रतीक उर्दू ज़बान बन के आती है हमारे सामने। और जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये क्योंकि ये एक तरह से इट इज़ अ डिस्टिलेशन ऑफ व्हाट इज़ द फाइनेस्ट अबाउट माय सिविलाइजेशन, कि इसमें दुनिया भर से हमने इन्फ्लुएंसेस ली हैं और उनको मिलाते हुए हज़ारों साल में एक खूबसूरत चीज़ बनाई है। और ये बात कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लोग पहचानते हैं, और इसलिए सुन के अच्छा लगता है, सुनने की कोशिश करते हैं, सही गलत, लेकिन कहने की कोशिश करते हैं कम से कम। क्योंकि एलोक्वेंस कम्स इन, वी लॉन्ग फॉर एलोक्वेंस। हमारी पब्लिक लाइफ में एलोक्वेंस भले ही कम होती जा रही हो, लेकिन एलोक्वेंस की भूख बरकरार है। और वो भूख, दिस आर्काइव इज वन प्लेस वेयर वी फाइंड दैट सेटिस्फैक्शन। इसलिए द डेथ ऑफ उर्दू इज ऑलवेज टॉक्ड। उर्दू के बारे में हमेशा उर्दू का मरसिया ही पढ़ा जाता है। उर्दू मरवर नहीं रही है, उर्दू बहुत अच्छी खासी चल रही है ना। हम तो देखते हैं कि हमारे मुल्क का पब्लिक कल्चर इज रिच विथ उर्दू, है ना। इट्स नॉट शॉर्ट, सॉरी। मेरा एक सजेशन है कि अगर देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ उर्दू को एसोसिएट कर दे तो इनकरेजमेंट मिलेगा। देखिए, दो बातें हैं। क्या होता है कि एक तो देवनागरी में बहुत छपरा है उर्दू लिटरेचर, और वो बहुत पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी ज़बान के आदमी से ये नहीं कह सकते, या हमारा हक नहीं बनता कि तुम अपनी स्क्रिप्ट छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? वो स्क्रिप्ट जैसी भी है वो उसे पसंद है, और उसको पूरा राइट है अपनी स्क्रिप्ट रखने का। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, और कभी नहीं कहूँगा किसी उर्दू के आदमी से आप ऐसा कीजिए कि अब आप देवनागरी में लिखा कीजिए। आप इसमें लिखना चाहते हैं आप लिखिए, देवनागरी में लिखना चाहें देवनागरी में लिखिए, आपकी मर्जी। हम तो कहते हैं तीसरा ही डिपार्टमेंट खोलो, ना वो हिंदी ना वो उर्दू, हिंदुस्तानी।
उसमें हो सकता है हम देवनागरी ले लें और हो सकता है हम रोमन ले लें, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो बात ये है, हम उर्दू स्क्रिप्ट को चैलेंज करना नहीं चाहते, और ये जो भी करें वो बात फेयर नहीं है। आप क्यों मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप देवनागरी में लिखिए, उर्दू स्क्रिप्ट में मत लिखिए? क्यों? वजह क्या है? इसलिए वो बाहर की स्क्रिप्ट है तो क्या हो गया? आप तो इसे जो कपड़े पहने वो भी बाहर के हैं, कोट पहने आप, तो हमारे बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं हम पे, तो क्या हो गया? ठीक है। और ये एक बात बताऊं, ये एक अजीब बात, मैं समझता हूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां को तो मालूम भी नहीं होगा कि उर्दू नाम की कोई जबान है। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट इट, इसलिए कि उनके दरबार में तो थी नहीं, वो वजूद ही नहीं था उनके यहाँ। ये ब्रज थी, काठियावाड़ी थी। अच्छा, पर्शियन इनकी मदर टंग नहीं थी, इनकी मदर टंग तो टर्किश थी। ये पर्शियन तो बेचारे पढ़ पढ़ के मजबूरी में बोलते थे, इसलिए कि पर्शियन उस ज़माने में वो थी जो आज अंग्रेज़ी है। अगर आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, नहीं बोल सकते तो भले कितना भी आपने पढ़ा हुआ आप जाहिल है। ये है आज की मोरालिटी। उसी तरह से दैट वाज द टाइम व्हेन पर्शियन लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड बाय होल ऑफ सेंट्रल एशिया, इंडिया और इवन मराठास। ये पेशवा वर्ड ही पर्शियन का है, इनकी कोर्ट्स में भी पर्शियन चलती थी। तो जहाँ तक पर्शियन का ताल्लुक है, वो इसलिए यहाँ नहीं है कि वो ये मुसलमान बादशाह थे। इन मुसलमान बादशाहों को तो उर्दू को पता ही नहीं था। ये पर्शियन इसलिए थी कि उस ज़माने में हर आदमी जो स्टेटस को जो था सिंबल, वो पर्शियन था, जैसे आज अंग्रेज़ी है। अच्छा, अब उसके शब्द रह गए तो हमारे भी बहुत है भाई। हमारे पड़ोसी से बीच में पाकिस्तान तो अभी आया है, तो ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे, तो एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी डेवलप्ड कल्चर। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे आई हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ गई हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये वन वे ट्रैफिक है। तो एक दूसरे से इस तरह का लेन देन बड़ी बड़ी तहजीबों में होता रहा है और हुआ है। अब आप उसे उधेड़ उधेड़ के एक एक वर्ड जब आप निकालना शुरू करेंगे तो आप उर्दू को तो छोड़िए, आप हिंदी को ऐसा डैमेज करेंगे कि क्या नहीं। आप हिंदी से सारे वर्ड निकाल दीजिए, जो भी आपको लगे कि ये तो फॉरेन सोर्स है, आप क्या करेंगे? आपको बोलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने कोई सरेंडर नहीं किया, हमने जो वर्ड्स भी लिए हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिए। मसलन हवा इज अ पर्शियन वर्ड। हवाएं पर्शियन नहीं है, हवाओं पर्शियन नहीं। दुश्मन इज अ पर्शियन वर्ड, मगर दुश्मनी ये तो हमने बनाई है। दोस्त तो पर्शियन है, दोस्ती हमने बनाई है। अब अगर हम निकालना शुरू करें दुश्मनी और दोस्ती में दोस्त और दुश्मन, तो ई बचेगा। तो मुझे तो दिल से उस आदमी से ई है तो ई है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो वो वर्ड, अच्छा तन मन धन, तन निकाल देंगे आप, तन तो पर्शियन का है, मन धन संस्कृत है। अरे भाई शादी ब्याह में शादी निकाल दो, ब्याह बचेगा। इतने फ्रेजेस हैं जिनमें संस्कृत के या भोजपुरी के या अवधी के वर्ड लिपट गए हैं उससे, फारसी के वर्ड से। अब आप निकालेंगे तो वही अधूरे लगने लगेंगे। वो मिलजुल के बने, शादी ब्याह, तन मन धन। अब तन की जगह आप कर दीजिए शरीर, तो मैं तो आपके साथ शरीर बंधन से हूँ, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा भाई साहब। तो अभी इसका इतनी क्या परेशानी क्या है इससे? अब ये हमारा हो गया। हम भाई अब हर चीज़ का, अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसकी भी ये बाहर का वर्ड है, इसकी भी हिंदी कर दो। एक ज़माने में अंग्रेज़ी शब्दों पे आया था, इसकी भी हिंदी कर दो, इसकी भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे हैं। स्टेशन जो है अंग्रेज़ी का वर्ड नहीं है, हमारा वर्ड है। हो गया, प्लेटफॉर्म हमारा है, सिग्नल हमारा है, गार्ड हमारा है। अब गार्ड का कुछ और कर देंगे आप तो पता नहीं वक्त पे ट्रेन चले न चले, रहने दीजिए गार्ड को। तो जो वर्ड आ गए हैं हमारे पास, कोई मुनासिब सब्स्टिट्यूट नहीं था, वो एक्सेप्ट हो गया और चल गया। अब मतलब हम लोग इस मामले में अल्टीमेट हैं, फिल्म के राइटर। मैं ज़िंदगी में मरता मर जाऊँ, मैं नहीं लिखूँगा कि तुमने मेरे सारे हुकूक ले लिए। हुकूक इज़ अ बैड साउंड, मैं नहीं यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा तुमने मेरे सारे अधिकार ले लिए। लेकिन
एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाएगा, भाई मुझे एक ज़रूरत की बात करनी है, मैं आवश्यकता नहीं कहूँगा कि मेरी एक आवश्यकता है अगर तुम पूरी कर दो, मैं नहीं कहूँगा, मैं ज़रूरत इस्तेमाल करूँगा। तो कहाँ मुझे हिंदी का वर्ड यूज़ करना, सोर्स से करना है, कहाँ उर्दू के सोर्स से करना है, इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी लिख रहा हूँ। और मैं क्यों हिंदुस्तानी लिख रहा हूँ? इसलिए कि मैं हिंदुस्तानियों के लिए लिख रहा हूँ। मैं उर्दू वालों के लिए नहीं लिख रहा, मैं हिंदी वालों के लिए नहीं लिख रहा, मैं हिंदुस्तानियों के लिए लिख रहा हूँ। आप जिस दिन हिंदुस्तानियों को एड्रेस करेंगे तो आपकी ज़बान खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आप जी सर। माइक दे दीजिए, माइक आपके मिल हाथ में चुका लिए है। हुए हैं। हाथ में लिए हुए हैं माइक। अच्छा, नहीं आलोक साहब, मेरा छोटा सा सवाल है। और ये नहीं, जो हमारे आपसे। दोस्त ने पहले सवाल किया, इससे मिला जुला है कि हमारे दोस्त ने अभी ये कहा कि उनकी जो मादरी ज़ुबान है वो भोजपुरी या कुछ है। हाँ, तो बड़ी तादाद में हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो लोगों की मादरी ज़बानें हैं वो इलाकाई ज़ुबानें हैं, लेकिन उर्दूआइजेशन और हिंदुआइजेशन के असर से वो सेंसस में अपनी ज़ुबानें उर्दू या हिंदी लिखाती हैं। तो इससे एक तरफ तो पॉलिटिकल नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ लिटरेचर बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, उसमें इलाकाई असर नहीं आ रहा है। इस पर आप किस तरह सोचते हैं? नहीं बस सवाल समझा नहीं आपका। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बड़ी तादाद में जो लोग घर में जो ज़बानें बोलते हैं जो उनकी मदर टंग से, मैथिली, मगही, भोजपुरी, हाँ, लेकिन जब वो अपनी ज़ुबान लिखाते हैं सेंसस में और जिस ज़बान की आइडेंटिटी के लिए वो असर्ट करते हैं वो हिंदी या उर्दू की आइडेंटिटी होती है। सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है, हुआ है और शायद आगे भी होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकली, ये सच है। लेकिन जाहिर है कि हम लोग बात तो कुछ और ही कर रहे थे, है ना, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है ना। नहीं, इनका दुख भी जायज़ है। ये एक और भी बात जो इसमें छुपी हुई है वो ये है कि मैथिली, ब्रिज, अवधी, ये ज़माने जो हैं इन्होंने बड़े पोएट्स इस्तेमाल पैदा किए हैं और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। अब वो कुछ इग्नोर हो गई है। अब ये हम ये नहीं कहते कि भाई इसकी मदर टंग मैथिली है और ये मैथिली पढ़ना चाहता है, ये जो है इसकी ब्रिज है, ब्रिज पढ़ना चाहो, और ये साहब ब्रिज के राइटर हैं और ब्रिज के राइटर्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमने तो कभी नहीं सुना कि अवधि के राइटर्स की। तो हमने सबको ये जो बड़ी लैंग्वेजेस थी इनके नीचे, इनके कारपेट के नीचे डाल दिया है। इतनी सेंसिटिव और बड़ी लैंग्वेज, ये मामूली लैंग्वेजेस नहीं है। आप जरा इनकी पोइट्री देखिए, इन लैंग्वेजेस में क्या पोइट्री हुई है, कमाल है। तो इनको जो मुकाम मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। यस सर। हाँ। सर, ये आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये लैंग्वेज का जो आपने जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को डेवलप करने का कहा है, ये तरीका बहुत आसान हो सकता है और ये फिल्म इंडस्ट्री से ही शुरू हो सकता है। एक चीज़ होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसे आप सब टाइटल्स कहते हैं। जैसे जावेद साहब कह रहे हैं कि सब टाइटल जो है रोमन के अंदर अगर हम लिखना शुरू कर दें, पिक्चर तो चल रही है हिंदुस्तानी में और नीचे टाइटल जो हैं वो रोमन में आने लग जाएं, जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वहाँ से हम करवा सकते हैं आप आसान से। देखिए, रोमन में सब टाइटल आते हैं और दूसरी फ्रेंच में आते हैं, पुर्तगीज़ में आते हैं, स्पेनिश में आते हैं, सब में आते हैं। आज हमारी जो एक आम हिंदुस्तानी फिल्म है हुजूर, वो मोर देन 170 कंट्रीज़ रिलीज़ होती है। तो वहाँ अलग अलग जो ज़माने हैं उसमें सब टाइटल, लेकिन हिंदुस्तान में हमें क्या ज़रूरत है अंग्रेज़ी सब टाइटल डालने की? और दूसरे है कि अगर अंग्रेज़ी क्या हिंदी या उर्दू में भी डालें, कोई पढ़ने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं बस। तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, मगर जहाँ है वहाँ करते हैं, डालते हैं। क्वेश्चन अख्तर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने आप गौर हैं किया। कहाँ? आप यहाँ हैं। जी बोलिए। आई एम फेयरली इनविजिबल। एनीवे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जश्न रेख्ता में मैंने गौर किया कि
बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है वो फेस्टिवल, और आप भी गए थे वहाँ, और बहुत और लोग भी गए थे, नसीरुद्दीन शाह साहब गए थे और बहुत पोइट्स जाने माने गए। इससे उर्दू की लोकप्रियता पे, उर्दू को बढ़ावा देने में कितना असर पड़ा है? बहुत पड़ा है। और मैं समझता हूँ आप वहाँ पर ये देखिए कि जो क्राउड होता है वो प्रीडोमिनेंटली यंग स्टूडेंट्स का होता है, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मोस्ट ऑफ देम परहैप्स कैन नॉट रीड उर्दू, इसलिए कि कहाँ पढ़ा होगा उन्होंने। और वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन क्राउड होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई यहाँ से वहाँ तक टोपियों में लोग बैठे हुए हैं, ऐसी जगह भी मैंने देखी हैं। तो वहाँ से तो मुझे घबराहट हो जाती है थोड़ी, लेकिन यहाँ मतलब सफ़ेद टोपियों में, तो क्लियर कर दूँ तो
शब्दावली की तो कोई शॉर्टेज है नहीं, या मीटरिंग में तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है कि वो अरे भाई मीटर में कैसे लिखूं, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल। नज़में अच्छी बुरी या मॉडल इमॉडल तब होती हैं जब उसमें कोई नया एंगल आ जाए, जैसे साहिर की ताजमहल है, जैसे फैज़ की उस वक्त बिल्कुल नई बात थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, जबकि इतनी रोमांटिक पोइट्री हो रही, उसने कहा भाई मैं पहला जैसा लव अभी नहीं ले सकता, लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है। दिस इज द पोएम। तो आप लोगों ने सुनी वो नज़्म? तो है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। कि भाई दुनिया में और भी आराम है मोहब्बत के अलावा, और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं भी उसे देख रहा हूँ, तो मैं कैसे उतनी मोहब्बत करूँ जितनी पहले करा। मगर फैज़ का के बारे में जिक्र ही निकला है तो आपको बताऊँ, कुछ उनकी शायरी भी सुना दूँ। आज जब फ़िराक की सुनाई तो फैज़ की भी सुना दें एक। जी वो तो जब मैं अपनी नज़्म सुना रहा हूँ तब ठीक करूँगा ना, अभी तो मैं दूसरों की शायरी सुना रहा हूँ। तो एक छोटा सा हिस्सा में देखिए फैज़ को सुनाता हूँ, फैज़ का जादू क्या है। मैंने कहीं कहा था कि फैज़ की शायरी चांदनी की तरह है। चांदनी में एक अजीब बात होती है, आप लोग नोट करेंगे कि भूसे का ढेर पड़ा हो मैदान में, उस पर चांदनी पड़ रही है। एक भैंस खड़ी हो कहीं, उस पर चांदनी पड़ रही है। एक टूटा खंडर हो, उस पर चांदनी पड़। चांदनी जिस चीज़ पर पड़ती है उसे एक थोड़ा सा मिस्टीरियस और खूबसूरत बना देती है। भले भूसे का ढेर हो तब भी वो खूबसूरत लगेगा। ये चांदनी की खूबी है। वैसे ही फैज़ की शायरी है। अब जेल में आदमी नज़्म लिख रहा है जेल की सुबह के बारे में। जेल की शाम भी एक नज़्म है, मैं जेल की सुबह की कुछ लाइनें सुनाता हूँ। जेल पे तो शायर लिखेगा, जेल में बंद है 5-6 साल से। तो 2 शायर थे पाकिस्तान में, एक जालिब और एक फैज़। तरह तरह के वहाँ रूलर्स आए पाकिस्तान में, एक काम सबने किया कि इनको जेल भेज दिया। सबने, किसी ने मौका छोड़ा नहीं। जो भी आता था एक काम करता था कि इनको जेल में भेज देता। तो ये जेल में उसने नज़्म लिखी है, जिंदा यानी जेल की सुबह। अब इसका लंबा नज़्म तो लंबी, मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ और 2-4 वर्ड जो है वो अनफेमिलियर होंगे, वो मैं ट्रांसलेट कर दूँगा। रात बाकी थी अभी के सरे बाली आकर, सिरहाने आकर चांद ने मुझसे कहा जाग सहर आई है। जाग जो शब की मैनाब तेरा हिस्सा थी, वो रात की जो शराब तेरा हिस्सा थी, जाम से अब वो तहे जाम उतर आई है। रात ख़त्म हो रही है। रात जो मैनाब तेरा हिस्सा थी, जाम से अब वो तहे जाम, अक्से जाना को विदा करके उठी मेरी नज़र। ये जो महबूब की हिम्मत थी उसे विदा करके मेरी आँख खुली। ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि मैं अगर सो रहा था तो मैं अपने महबूब के ख्वाब देख रहा था। ये तो उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्से जाना को विदा करके उठी मेरी नज़र, शब के ठहरे हुए पानी की स्याह चादर पर। जा बजा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर, चांद के हाथ से तारों के कमल गिर गिर कर डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे। रात और सुबह बहुत देर गले मिलते रहे। लज्जत ख्वाब से मखमूर हवाएं जागी, जेल की जहर भरी चूर सदाएं जागी। दूर दरवाज़ा खुला कोई बंद हुआ, दूर मछली कोई जंजीर मचल कर रोई। दूर उतरा किसी ताले के जिगर में खंजर, सर पटकने लगा रह रहे के दरीचा कोई। ये डिस्क्राइब कर रहा है जेल की सुबह को। आप ज़रा देखिए, ये जादूगरी थी उसकी। वेरी वेरी एस्थेटिक पोएट। क्या मतलब, जो गम की बात भी है, जो दुख की बात भी है, वो भी इस तरह से कहता था कि आपको एक अजीब दुनिया में ले जाता था। ग्रेट पोएट। अब इन लोग के बाद अपनी सुनाऊंगा दोहरी, मतलब आप गुलाब जामुन के बाद टॉफ़ी खाना चाह रहे हैं। चलिए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ।
सर आप याद दें, एक साहब वो गए थे, वो जा रहे थे छतरी लेने, तो बीवी ने कहा देखो ये दुकानदार बड़े बेईमान होते हैं, वो जितना भी कहें उसका तुम आधा ही कहना। तो बाहर गए, सड़क पे छतरी बिक रही थी, तो कहने लगे कि कितने की? कहने 16 रुपए की। कहले 8 रुपए में देते हो? अब उसकी भी शायद बोनी नहीं हुई थी, झंझट झड़ते करते करते वो 8 पे आ गया। जैसे ही उसने 8 कहा तो कहने लगे 4 रुपए में लूँगा। तो झुंझला गया, कहने लगे आप तो मुफ्त ले जाइए। कहने फिर तो 2 लूँगा। तो अब मैं भी आपको 2 नज़्में सुनाऊंगा। एक मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज हम बात कर रहे थे ज़बान पे, तो आज ज़बानों के साथ क्या हो रहा है ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहाँ बात हो रही है? आपका ही नाम आ रहा। जी, मुझे ठीक से सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन कुछ अच्छा ही कह रही होंगी। वो बाद में बता दीजिएगा, मुझे लगता है आपने कुछ अच्छी बात कही थी। जी, ये नज़्म है साजिश। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है कि लफ्ज़ और मानी में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन है कमज़ोर कर दो। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने साजिश बुनी है, रची है कि लफ्ज़ और मानी में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन हो कमज़ोर कर दो, कि हर लफ्ज़ बन जाए बेमानी आवाज़। फिर सारी आवाज़ों को ऐसे गड़मट करो, ऐसे गूंधो के एक शोर कर दो। ये शोर एक ऐसा अंधेरा बुनेगा कि जिसमें भटक जाएंगे अपने लफ्ज़ों से बिछड़े हुए सारे गूंगे मानी। भटकते हुए रास्ता ढूंढते वक्त की खाई में गिर के मर जाएंगे, और फिर आके बाजार में खोखले लफ्ज़ जैसे गुलामों के मानंद बिक जाएंगे। सारे अल्फाज ये बेबस गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पे इस तरह यूरिश करेंगे, हमला करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारत, सारे जज्बात के शीशा घर मुनज़्ज़म होके रह जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे। हर तरफ जहन की बस्तियों में यही देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची। मगर कोई है जो ये कहता है मुझसे कि हैं आज भी लफ्ज़ मानी के ऐसे परिस्तार और शैदा जो मानी को यूं बेज़बां लफ्ज़ को ऐसे नीलाम होने न देंगे। अभी ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालात का, सारे जज्बात का, दिल की हर बात का ऐसा अंजाम होने न देंगे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं? वो दुनिया के जिस कोने में हैं जहाँ हैं, उन्हें ये बता दो कि लफ्ज़ और मानी बचाने की खातिर ज़रा सी ही मोहलत बची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है। नहीं सर, वो यहाँ नहीं। मेरे अच्छे रिलेशन क्यों ख़राब करवा रहे हैं? आप दूसरी सुन लीजिए जो वक्त उन्होंने कहा था। हाँ, बस वक्त आखिर सुना के घर चलते हैं। कुछ लोग तो जा ही रहे जी। हेलो, नहीं वही उन्होंने जी। अच्छा, ज़रूर सर। यहाँ लिखा हुआ हिंदी उर्दू सियामीज ट्विंस। आपका लंबा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसमें तो हिंदी उर्दू, कितनी हिंदी है कितनी उर्दू है, जो कुछ भी है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिंदी उर्दू सियामीज ट्विंस। असल में आपने ज़बान पे ध्यान नहीं दिया, आप लड़की के बारे में सोचते रह गए कि भाई इसमें कौन सा उर्दू का लफ्ज़ है, आपने क्या लेना था, लड़की देखो यार। चलिए ठीक, ये भी सही, अच्छी बात है, आदमी को ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा,
जी, मैं पूछना चाह रहा था, आप कह रहे थे नॉर्दर्न इंडिया ने अपना लगेज प्लेटफॉर्म से छोड़ दिया, तो देखिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल में एक भाषा से लगाव है, तो ये नॉर्दर्न इंडिया जो आपने कहा, ये नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे क्यों ज़्यादा हुआ? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड कि हमें अपने कल्चर, अपनी ज़बान से वो लॉयल्टी क्यों नहीं है जो दूसरी जगहों पे पाई जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे पास उसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल आपने किया है, इस पर मैं सोचूंगा ज़रूर। और जैसे आलोक राय साहब हैं, ऐसे लोगों से मैं पूछता रहता हूँ, तो बाद में फिर अपने नाम से बोलता हूँ, तो मैं इनसे भी बात करूँगा इस बारे में। ये सही बात है, आप बहुत, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट आई एम अफ्रेड आई कांट गिव यू अ कंप्लीट परफेक्ट आंसर, आई मस्ट एक्सेप्ट इट। I have just one comment. मतलब, sorry, I have one comment. It's a very important question. लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस चीज़ को हम कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, उसकी ज़मीन यही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल्चरल नेशनलिज्म का कल्चर क्या है, वो प्लेटफॉर्म पर छूट गया है ना? कि जो what is the corresponding culture of cultural nationalism? I don't know. है ना? I don't think anybody knows. Something else has happened. But it's an important question, and I think we'll have to leave it there for now. जी, अब हाँ बोलिए। अब आखिरी डिटेल में बताइए लोगों को, कोई जल्दी नहीं। जी, आपके पास माइक नहीं है, लोग सुनेंगे कैसे? अरे भाई मैंने सुन लिया, और क्या चाहिए आपको? देखिए, दिलचस्प बात है कि सर ने तो सुन ही लिया जी। वैसे मेरा प्रोफेशन एक सर्जन का है, लेकिन मुझे उर्दू से ख़ास प्यार है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर आप खाते क्या हैं? आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, कुछ हमें ज्ञान दें तो हम भी अपने पेशेंट्स को कुछ बताएं कि इस मेमोरी के लिए, इतनी लाजवाब आपकी मेमोरी है कि मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या स्पेशल खाना खाते हैं, डाइट आपकी क्या है? आप गलत समझ रही हैं कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछेंगी कि मेरी कार का फ़ोन नंबर क्या है, कार का मुझे नहीं याद, और मुझे अपनी किसी कार का नंबर कभी याद नहीं रहा है। मुझे टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते हैं, और अब मैं एक नया डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि मुझे चेहरा याद रहता है, बात याद रहती है, मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों का, विच इज़ वेरी बैड। असल में मेमोरी अच्छी बुरी नहीं होती, होता यह है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जी, जब आप इंटरेस्टेड, देखिए एक बच्चा है, वो ज्योग्राफी में वीक है, तो उसको माँ बाप ने एक टीचर रख दिया, उनका भाई ऐसे ज्योग्राफी पढ़ाते रहिए, तो उसे कहा कि अच्छा, उसे बेटा यूरोप का नक्शा दिखाया, जर्मनी है, फ्रांस ये वो, और उसे फिर बताओ ये कर रटाया। वो स्कूल गया, वो नहीं बता पाया जर्मनी कहाँ है। वही बच्चा अखबार में जो आता ना, एक सिर्फ नाक, एक नाक, सिर्फ कान, इधर से प्रोफाइल आधा, वो बता देगा ये हेमा मालिनी की आँखें हैं, ये धर्मेंद्र की नाक है। ही इज रिकंस्ट्रक्टिंग द होल फेस बाय लुकिंग एट द आई। तो क्या अच्छी मेमोरी है उसकी, देखिए, मगर उसको ये नहीं मालूम जर्मनी कहाँ है। तो इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट लिसन। हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वी वेट टू टॉक, कि भाई अब ये ख़त्म करें तो मैं बोलूँ, तो मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ कि कह क्या रहे हैं, तो याद कैसे होगा? अगर आप जब आदमी बोल रहा है उसे सुने कि कह क्या रहा है, तो आपको याद रहेगा। दो लोगों की बात बहुत ध्यान से सुना कीजिए, एक जिनसे आप अग्री करती हैं और एक जिनसे आप डिसअग्री करती हैं। जो डिसअग्री करके जब उसे खूब बोलने दीजिए, ताकि उसकी गलतियाँ निकाल के आप काउंटर पॉइंट दे सकें। उसे कम बोलने देंगी तो कम गलतियाँ करेगा। एक दूसरे, एक के अच्छी तरह आप सुनेंगी, अच्छी तरह आप पढ़ेंगी, तो आपको याद रहेगा। अगर आप पढ़ते वक्त या सुनते वक्त ही आपका ध्यान आधा है तो कैसे याद रहेगा? और जिन चीज़ों में ध्यान नहीं, मैं बहुत चीज़ों जिनसे मुझे दिलचस्पी नहीं है, मतलब मैं आपको यहाँ बैठ के बताऊँ तो आप कहेंगे झूठ बोल रहे, मुझे यही नहीं मालूम कि मेरा बैंक कहाँ है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा पैसे कितने हैं भी कि नहीं है। मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जिस चीज़ में इंटरेस्ट, मुझे पैराग्राफ्स याद रहते हैं, प्रोज पोइट्री याद करना तो आसान है। इफ़ आई सी ए फिल्म, आई लाइक अ सीन, मुझे पूरा सीन याद रहता है, डायलॉग, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड।
अब देखिए मेरी जो बात है आप कभी नहीं भूलेंगी, इसलिए कि आप इंटरेस्टेड हैं।
में, जो आप पढ़ेंगे इस साल और आप चाहते हैं कि और लोग पढ़े आपके साथ? अंग्रेजी में आप पढ़िए गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस। उर्दू में पढ़िए आग का दरिया कुलैन हैदर, और हिंदी में पढ़िए गौदान। अच्छा, मैं जल्दी से उन्नन सुना देता हूँ सर, वक्त हो रहा है, वक्त ही टाइटल है पोएम का, सुनिए। इजाज़त है? अच्छा। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every joy, every sorrow, every pain, every pleasure, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स स्पर्श का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, वो फिक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है? किन पहाड़ों से आ रहा है? ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है? सारी सदियाँ कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियाँ छुपी हुई हों, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुज़रता है वो थमा है, गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है? Thank you.